Bismillahirrahmanirrahim. So we will start our lecture of cerebellum today. A very important lecture. This is a part of motor system or very important part of nervous system. So try to remember important things about the cerebellum. Now you should not be confused with that. Okay, from C there are two structures, a similar name. One is upward, that is cerebrum. One is downward in the hindbrain, known as cerebellum. Clear? So cerebellum is the part of the hindbrain responsible for coordinating movements and control of balance. अब इवन ऐसे होता है कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे वाला सेरिबेलम है या ऊपर वाला सेरिबेलम है। तो अगर इसका आप इजी वे में बता दूं, नीचे से ऊपर चलें आप तो नीचे वाला बी से है, ठीक है ना। सेरिबेलम इसमें एल आ रहा है, ऊपर वाले में सेरिब्रम आर आ रहा है। एल लेटर पहले आता है तो नीचे से हम चल रहे हैं तो एल पहले आ रहा है, आर ऊपर बाद में आएगा। इस तरह करके आपको मेमोराइज हो जाएगा। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पोन्स के पीछे होता है, ठीक। What is its definition? Called as ki responsible for coordinating movements and control of balance. यानी इसका मसल्स के साथ काम है बड़ा, तो मोटर सिस्टम का ये पार्ट हम कह सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ मोटर सिस्टम। Anatomically, this is divided into some lobes. See here in that diagram. One can be called as this is anterior lobe, other is the posterior lobe, and this smaller one hide did inside this posterior lobe is known as flocculonodular lobe. Clear? Same के anterior, this one posterior, and flocculonodular lobe. These are three lobes. This is its anatomical division. Its physiological division is somewhat different, shown in this diagram. Okay, it's when we see from behind, central part is a narrow band-like structure, sometimes called as kit structure, like an earthworm, a worm. So due to that, this is known as a vermis. This central vermis. Clear? This is its physiological division. Okay, there is vermis around the vermis on both sides, because this can be called as we can divide from the center of vermis this cerebellum into two parts, right half, left half. Clear? So near the cerebellum on both sides, near this vermis on both sides, on right and left, there is a zone known as intermediate zone. Now around the vermis, this hole is called as hemisphere, a half sphere, so known as hemisphere, or we can say hemisphere of cerebellum, so known as cerebellar hemisphere. This one is known as this intermediate zone. This is lateral zone of hemisphere. So intermediate is near to cerebellum. Lateral one is more lateral on both sides. Clear? Anatomical division are also shown. This one is anterior lobe, posterior lobe, and flocculonodular lobe. Now, how cerebellum work? For that purpose, we have to understand its pathway. It receive information from which parts and give information to which part. Clear? So known as K, there are different afferent. From A means towards. There are important pathway from which information come and enter into cerebellum. Cerebellum. These information are called as afferent pathways. Clear? Now see these three structure, one, this, two, three. These are three important gates from which tracts enter in cerebellum. These are known as peduncles. One upward superior, middle one middle, and lower one inferior peduncle of cerebellum are cerebellar peduncles, inferior, middle, and superior. Now
two ascending tracts we have done which carry the information about the muscle contraction, tension in the muscle, tendons, position and rate of movement of body, force acting on the surfaces of the body. These four information are carried in a special tract known as spinocerebellar tract. There were two types of spinocerebellar tract, dorsal and ventral spinocerebellar tract. Clear? Dorsal was entering in the inferior peduncle while ventral was entering in the superior peduncle. So these are afferent pathway which come from the periphery, means from hands, feet, muscles. Clear? They carry information about the muscle contraction, activity of the muscle, tension in the muscle. Now another afferent pathway, it not only receive these muscular information, but this cerebellum also receive another important information. From where? From the other parts of brain. Importantly from the higher brain, which we call as cerebrum. A pathway known as cortico-pontocerebellar pathway. Cortico-pontocerebellar pathway. This is the most important pathway towards cerebellum. Is the pathway which originate in the pons, cerebral motor and premotor cortices. Basically, it originates in the cerebral cortex, then go to pons, in the cerebral cortex, in the motor area, premotor area, and also in the cerebral somatosensory cortex. Clear? So then it passes by the way of the pontine nuclei, means goes to pons and pontocerebellar tract, then from pons goes to cerebellum, mainly to the lateral division of the cerebellar hemisphere. As we discussed, there are hemisphere, they will go to lateral part of hemisphere on the opposite side of the brain from cerebral area, means from the higher upward brain. If the right cerebrum give this tract, that will go to left cerebellum. राइट वाला जो अपर हमारा ब्रेन का पार्ट है, जिसको हमने कहा कि उसमें आर आता है, ऊपर है, सेरिब्रम है, वहां राइट साइड की इंफॉर्मेशन सेरिबेलम में लेफ्ट पे आएगी. क्लियर? इसके अलावा ओलिव इंफीरियर ओलिव से सेरिबेलम में ट्रैक्ट आता है, उसका नाम है ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट. और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आता है. वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेटस? आपने सुना है, हियरिंग के साथ पढ़ा होगा. वेस्टिबुलर सिस्टम, उसका काम है बैलेंस का, तो सेरिबेलम का भी काम है बैलेंस का. तो वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी एक खास रास्ते में, ट्रैक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिबुलो सेरिबेलर फाइबर. क्लियर? और इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन, वहां से भी फाइबर आएंगे, रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर. क्लियर? दीज आर एफरंट फाइबर, ये सेरिबेलम के पास फाइबर आएंगे. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट चार और ट्रैक हैं, कार्टिकोपेंटोसेरिबेलर, ओलिगोसेरिबेलर, वेस्टिबुलोसेरिबेलर, रेटिकुलोसेरिबेलर फाइबर. अब इंपॉर्टेंटली ये देखेंगे, अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर हम ऐसे कट कर दें, कट करेंगे तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं, सही है, ईच साइड से. इनको कहते हैं डीप न्यूक्लियाई. किसके? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होती डेप्थ के अंदर सेरिबेलम के, उनको हम कहते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई. दीज आर आउटर से इनवर्ड की तरफ आएंगे, आगे डायग्राम में भी आएगा. दीज आर डेंटेड न्यूक्लियस, इंटरपोज न्यूक्लियस, फेस्टिजियल न्यूक्लियस. नाम याद करने आपने, डेंटेड, इंटरपोज, फेस्टिजियल न्यूक्लियस. All the deep cerebellar nuclei receive signals from two sources. अब ये जो न्यूक्लिया है, ये सेरिबेलम को चलाते हैं, उसका काम करते हैं. क्या? ये सिग्नल रिसीव करते हैं दो सोर्सेस. कहाँ से? एक तो सेरिबेलम का अपना कॉर्टेक्स है, वहां से बाहर की तरफ जो है कॉर्टेक्स है, अंदर इनके न्यूक्लिया है. और डीप सेंसरी एफरंट ट्रैक्ट टू सेरिबेलम, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? जो इनके पास सेंसरी ट्रैक्ट से आते हैं उनसे लेते हैं, और सेरिबेलम के कॉर्टेक्स से लेते हैं. क्लियर?
इनपुट सिग्नल इन द सेरिबेलम इट डिवाइड एंड गो इन टू डायरेक्शन। जो सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन आती है या तो वो डायरेक्टली टू वन ऑफ द सेरिबेलर न्यूक्लियस, उसके जो 3 न्यूक्लियस हैं ये जो हमने नाम बताया डेंटेट, इंटरपोस्ट, वेस्टिजियल, या तो इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी या टू ए कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स और ओवरलाइंग द डीप न्यूक्लियस। ये जो हमने हेमिस्फेयर की जो बाहर की तरफ थे इस एरिया को हम कहते हैं सेरिबेलम का कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। जैसे रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है, किडनी का, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है, इसी तरह सेरिब्रम के बाहर पोर्शन को हम कहते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो या तो वहां इंफॉर्मेशन जो है वो उस डायरेक्शन में आती है। क्लियर? अब सेरिबेलम से इफ्रंट कैसे जाते हैं, इनसे जो इंफॉर्मेशन बाहर जाती है वो देखें, वो क्या लिखा हुआ है, सेरिबेलो थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक, सेरिबेलम से थैलेमस की तरफ ट्रैक जाएगा, ये देखिए इन्हीं से वापस जा रहा है। दूसरा पेलियो सेरिबेलम, अब इस पे आगे आएंगे। पेलियो सेरिबेलम क्या है? इट शोज बेसिकली कि देखें सेरिबेलम के डीप न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन एफरेंट आएगी, वो सेरिबेलम का जो काम है उसके बाद सेरिबेलम से इफरेंट इंफॉर्मेशन भी जाएगी। वो किस मकसद के लिए जाएगी उस पे आते हैं। द ब्रेन और द पेरिफेरी, ब्रेन से या पेरिफेरी से क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा हम देख लें। कार्टेक्स, मॉलिक्यूलर कार्टेक्स की लेयर 3 होती है, ठीक है? वो कौन सी होती है? इसमें ये भी आपने याद करना है कि जो सेरिबेलम का कार्टेक्स है उसके अंदर सेल की 3 लेयर होती हैं। एक का नाम है मॉलिक्यूलर लेयर, दूसरी परकंजी लेयर, तीसरी ग्रेन्यूल सेल लेयर। क्लियर? दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर बीसीक्यू। मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजी सेल लेयर, ग्रेन्यूल सेल लेयर, 3 लेयर होती है। फिर ये डीप सेरिब्रल न्यूक्लियर होते हैं जिनके हमने नाम पढ़े, वेस्टिजियल, इंटरपोज, ठीक है? वो न्यूक्लियस अंदर होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें कि और क्या है इसके सर्किट में। इनपुट देखें, इनपुट फाइबर आ रहे हैं 2, एक ये है इनपुट फाइबर लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ है इनपुट। इनपुट मतलब जो सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से। अब यहाँ देखें इनपुट जो इंफीरियर ओलिव से आ रहा है, लिखा हुआ है क्या, इंफीरियर ओलिव। इनका देखें ऊपर की तरफ क्या नाम लिखा है, क्लाइंबिंग फाइबर, ठीक? जो ओलिव से आते हैं फाइबर, उनका नाम सेरिबेलम के अंदर चेंज हो जाता है ये सेंसरी फाइबर इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, इनका नाम है क्लाइंबिंग फाइबर, ठीक? जो ऑल अदर एफरंट दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं इसके पास, स्पाइनो जो है सेरिबेला ट्रैक से आ रहे हैं या रेटिकुलर फॉर्मेशन से या कहीं और से आ रहे हैं, उनका नाम है मोसी फाइबर। तो मोसी फाइबर दूसरे एरिया से आते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर ओलिव से आते हैं, ठीक? ये आएंगे, फिर ये देखें डीप सेरिब्रल न्यूक्लियर, उनके साथ जो है साइनेप्स करेंगे, ये भी आएंगे ऐसे ग्रेन्यूल सेल के साथ, फिर ये पूरा इनका सर्किट है, ठीक? क्या लिखा है, इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस अराइज एंटायरली फ्रॉम परकेंजी सेल इन द कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम। अब देख लें ये जो फाइबर आ रहे हैं किसके पास आ रहे हैं, बड़ा सेल है इसका नाम है परकेंजी। परकेंजी के पास ये जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब परकेंजी का नीचे आप अगर देख लें यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये इनहिबिटरी इनपुट है, यानी परकेंजी सेल इनहिबिटरी सिग्नल देगा, किसको देगा, इन आउटपुट क्रिएट करेगा, ठीक? The afferent input to the cerebellum are mainly of two climbing fiber type and mossy fiber हम पढ़ चुके हैं, ये mossy है, climbing है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मॉलिक्यूलर लेयर है, परकेंजी सेल लेयर है, ग्रेन्यूल सेल लेयर है, 3 लेयर है इसकी, ठीक? अब इसके डेप्थ में सर्किट को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सिर्फ यही याद करें जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परकेंजी सेल जो है उसका आउटपुट जो है वो इनहिबिटरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट इन दैट सर्किट, ठीक? और ये 3 लेयर है, मॉलिक्यूलर, परकेंजी, ग्रेन्यूल सेल।
अब फंक्शन क्या है इसका सेरिबेलम का, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, मैं आपको विद एग्जांपल देन यू विल बी क्लियर कि क्या है। अब सपोज करें यू आर इन स्पोर्ट्स, कोई साइकिलिंग कर रहा है। अब एक छोटी सी लाइन है, वो लाइन है जस्ट एज हाफ फीट, ठीक, एक बालिश जितनी, 4-5 उंगलियां रखते हैं, या आप समझ लें कि हमारी जो एक शूज होता है उसकी विड्थ जितनी लाइन है, दोनों तरफ से लाइनें लगी, एक रास्ता बना है, और जो है किसी को कहा है कि आपने सिर्फ इसी रास्ते में से साइकिल चलानी, ठीक। अब वो क्या करेगा, उसके माइंड में आएगा हाँ मैंने बैलेंस मेंटेन करना है, इसी में से जाना है, वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, सपोज साइकिल के ऊपर बैठा। अब उसने जो मूवमेंट स्टार्ट की अपनी साइकिल की, या सपोज कर लें किसी को पैदल ही कह रहे हैं कि आपने दौड़ना है लेकिन इसी लाइन में दौड़ना है, इससे इधर उधर नहीं होना, तो अब वो जो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा उसका सिग्नल आएगा फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स, ऊपर सेरिब्रम। लेकिन जैसे ही वहां से सिग्नल आएंगे, वो सिग्नल पहले जाएंगे सेरिबेलम के पास। किस लिए जाएंगे सेरिबेलम के पास? इसलिए जाएंगे कि सेरिबेलम ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद एग्जीक्यूट करना है इस मूवमेंट को। जब भी मसल की मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट स्टार्ट होगी, स्टार्ट तो करवाएगा ऊपर से, हमारा कॉर्टेक्स से सिग्नल आएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट, प्लेन और बीच के अंदर कोऑर्डिनेट, ये सारा काम सेरिबेलम करेगा। सेरिबेलम क्या करेगा, जहां हमने पांव रखना है, पेडल साइकिल की है, कहाँ रोकना है, कहाँ जाना है, कौन सी मूवमेंट कहाँ पर रुकेगी, कहाँ स्टार्ट होगी, दूसरी अल्टरनेट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होगी, दिस ऑल इज फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। So for any fine motor activity, cerebellum is very important. सिंपल नटशेल में यही है कि कोई भी आपने डेलिकेट एक्टिविटी करनी है, वो स्टार्ट तो सेरिब्रम करवाएगा, मोटर एरिया, एक और भी एरिया बेसल न्यूक्लियस भी होते हैं, उसके फंक्शन पे आएंगे, लेकिन उस मूवमेंट की एग्जीक्यूशन, होल एग्जीक्यूशन इज द फंक्शन ऑफ दिस। उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, उसको अपने डेलिकेट वे में एंड तक पहुंचाना है, सब काम सेरिबेलम। ठीक, अब हम ये आपको एक स्केच दे दिया हमने, अब पढ़ेंगे कि कैसे करना है। The initiating signal from the cerebral motor cortex at first greatly increase deep nuclear cell excitation। ये कह रहा है कि ऊपर का जो ब्रेन है सेरिब्रम, उसका मोटर एरिया इस हमारे सेरिबेलम के डीप न्यूक्लियर को एक्साइट करता है, ठीक। Then another few millisecond later feedback inhibitory signal from Purkinje cell, अभी हमने पढ़ा कि वो नेगेटिव सिग्नल देंगे, वो क्या, in this way there is first a rapid excitatory signal sent by deep nuclear cell into the motor output pathway to enhance the motor movement, followed within another small fraction of a second by inhibitory signal। ये पेज ये कह रहा है कि पहले तो हमारा सेरिबेलम उसको सिग्नल देगा कि मूवमेंट करवाए, वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद एकदम से उसका इनहिबिटरी सिग्नल भी आएगा, स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी सिग्नल, दोनों साथ साथ चलेंगे और इसी मैकेनिज्म से ये मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। The feedback signal occur after a short delay to stop the muscle movement from overshooting its mark। ये ओवरशूटिंग को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी को हम कहें कि आंख बंद करे और वो फिंगर टिप अपनी टच करे अपनी नोज के साथ, तो अब आंखें तो उसकी बंद है, देख नहीं रहा है, लेकिन अगर सेरिबेलम वर्क करेगा, उसकी फिंगर एग्जैक्टली नाक पे आके रुक जाएगी, नाक से आगे नहीं जाएगी। अगर आगे जाएंगे उसको ओवर शूटिंग कहते हैं। तो ओवर शूटिंग को कौन प्रिवेंट करता है? ये भी करता है। इसी तरह किसी भी मूवमेंट में जहां पे मूवमेंट रुकनी है उससे आगे जाने को कहते हैं ओवर शूटिंग, उसको रोकेगा ये फीडबैक सिग्नल फ्रॉम सेरिबेलम। This inhibitory signal resembles a delay line negative feedback signal of the type that is effective in providing damping। इस mechanism को कहते हैं डैम्प करना, रोक देना।
दिस डायग्राम शो इट सिग्नल। देखें फ्रंटल कार्टेक्स ये जो है यानी मोटर कार्टेक्स, यहाँ से देखिए सिग्नल ये ब्लू वाले आ रहे हैं, फिर जो है रेड न्यूक्लियस से भी आ रहे हैं, यहाँ से देखें सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से आए, ये न्यूक्लिया में डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये देखें डेंट जो है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे कार्टिको पोंटो फाइबर कार्टेक्स से रेड वाले फाइबर आए हैं, पोंटाइन के पास कोन से वापस आए कहाँ, ये न्यूक्लियस में किसके, डेंटेट न्यूक्लियस के पास जाएंगे रेड वाले फाइबर सेरिबेलम के, यानी पाथवे स्टार्ट हुआ सेरिब्रम से, आया सेरिबेलम के पास, सेरिबेलम से ये वापस जाएगा देखें किसके पास, दोबारा उसी कार्टेक्स के पास देखें। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम है कि ऊपर कार्टेक्स से फाइबर आए नीचे सेरिबेलम के पास, वापस नीचे सेरिबेलम से फीडबैक इनहिबिशन गई दोबारा कार्टेक्स के पास, ताकि जो मूवमेंट हो रही है वो करेक्टली हो, जहां रोकनी है वहां रुक जाए, ठीक। इसका सर्किट है। टर्न ऑन टर्न ऑफ जो है आउटपुट सिग्नल फ्रॉम सेरिबेलम, ये वही बात है। द टिपिकल फंक्शन ऑफ सेरिबेलम is to stop to help provide rapid turn on signal for the agonist muscle and simultaneous reciprocal turn off signals for the antagonist muscle at the onset of movement, ठीक। इसका मतलब है जब मूवमेंट मसल के पास इंफॉर्मेशन आएगी हमने हाथ को फ्लेक्स करना है, तो फ्लेक्सर के पास सिग्नल ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन एगोनिस्ट मसल, और उसी टाइम उसके जो रेसिप्रोकल एंटागोनिस्ट मसल है एक्सटेंसर, उनके पास सिग्नल ऑफ चला जाएगा कि अब आप ऑफ हो जाएं, हमने हैंड को फ्लेक्स करवाना है, आपका कोई रोल नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है। एगोनिस्ट के पास ऑन का सिग्नल जाएगा, एंटागोनिस्ट के पास ऑफ का, जब एंटागोनिस्ट के पास ऑन जाएगा तो एगोनिस्ट ऑफ हो जाएंगे, ये मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। अब फंक्शनली ये जो इसके काम है, ये इसको फंक्शनली डिवीजन दी गई है सेरिबेलम को, कैसे, जो बैलेंस मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है सेरिबेलम, उस पोर्शन को हमने नाम दे दिया वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, ठीक। दिस लेवल कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ द स्मॉल फ्लोकोनोडुलर सेरिबेलर लोब्स, जो नीचे एक लोब पड़ा था पहली दूसरी स्लाइड में, उसका रोल है, lie under the posterior cerebellum and adjacent portion of vermis. It provide neuronal circuit for the most of the body equilibrium and balance. Vestibulocerebellum जो है वो जो एनाटॉमिकल डिवीजन में फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब था वो और वेस्टिबुलर apparatus से जो सिग्नल आ रहे थे, कंबाइनली दे विल मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, यानी कोई जाएगा तो गिरेगा नहीं, टिल्ट नहीं होगा, बैलेंस से अपना काम करेगा, ये काम है वेस्टिबुलो सेरिबेलम का। नेक्स्ट एक पार्ट है, इसको कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम, ये फंक्शनल डिवीजन है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ वर्मिस, जो बीच का पोर्शन है, प्लस इंटरमीडिएट जोन ऑन बोथ साइड, याद रखें वर्मिस के साथ जो दाएं बाएं के इंटरमीडिएट जोन थे बीच के, वो it provide the circuitry for the coordination of movement by receiving impulses from proprioceptor in the muscle, tendon, joint, tactile receptor, visual receptor, auditory receptor। अब सिंपली स्पाइनोसेरिबेलम का क्या काम है, जो भी मूवमेंट होती है, एनी मूवमेंट, उस मूवमेंट के करने के दौरान अब हमने लेग को उठाना है, तो सेरिबेलम को पता पहले होना चाहिए कि लेग की क्या पोजीशन है, जॉइंट की क्या पोजीशन है, फ्लेक्सर्स की क्या पोजीशन है, तो उसके लिए प्रोप्रियोसेप्टिव्स का रोल है मसल में, टेंडन जॉइंट से, और टैक्टाइल रिसेप्टर, और हम जो देख रहे हैं पोजीशन कहाँ से हमने जाना है, और सुनते वक्त बाज़ औक़ात कोई एक्सेसिव साउंड आती है, हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आती है इंटरमीडिएट जोन और वर्मिस के कार्टेक्स के पास, और फिर ये मूवमेंट एग्जीक्यूट होती, ठीक है। जो भी मूवमेंट हम करवा रहे हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करवाता है स्पाइनोसेरिबेलम, क्लियर। अब ये सेरिब्रोसेरिबेलम यानी सेरिब्रम और सेरिबेलम, इनकी कॉम्बिनेशन कैसे होगा, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर थे उनका सबसे लेटरल पोर्शन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। इट
transmit its output information in the upward direction back to brain, वापस cerebrum के पास information भेजेगा, functioning in a feedback manner with the cerebral cortex to plan sequential voluntary body and limb movement. फिर वहां से planning होगी movement कैसे करनी है. These movements are planned as much as 10th of a second in advance of the actual movement. ये बात याद रखिए कि मूवमेंट से पहले ही सेरेबेलम उसको क्या कर लेगा, उसका स्केच बना लेगा कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करनी है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ मोटर इमेजिनरी ऑफ द मूवमेंट टू बी परफॉर्म. यानी जो मूवमेंट करनी है, जो पांव का सोल जहां रखना है, उसका स्केच पहले ही बन जाता है. ठीक है, जो नक्शा बनता है वही इमारत बनती है. मूवमेंट का जो नक्शा होता है, मोटर इमेजरी, वो इसमें बनता है सेरिब्रो सेरिबेलम, ताकि मूवमेंट प्रॉपर्ली परफॉर्म. क्लियर है. अब ये थोड़ा सा और देखें. वर्मिस हमने बताया मोटर एग्जीक्यूशन, और ये उसका इंटरमीडिएट जोन अभी बाकी. मोस्ट लेटरल जोन जो अभी हमने बताया कि मोटर प्लानिंग होती है, नक्शा बनता है उसका. ठीक है, ये फ्लोकुलर नोडुलर नोब हमने कहा कि ये फर्स्ट वाला है आपका वेस्टिबुलो सेरिबेलम. फिर हमने वर्मिस और ये इंटरमीडिएट को कहा कि ये है स्पाइनो सेरिबेलम. इस ब्लू वाले को हमने कहा कि सेरिब्रोस सेरिबेलम है. ठीक, तो ये इसके पार्ट्स हैं फंक्शनल डिवीजन. जर्नली अब हमने क्या पढ़ा कि क्या करवाता है ये मोटर लर्निंग का मतलब. जब हम लर्न करने होते हैं नई एक्टिविटी, उसका स्केच बनता है पहले, वो भी इसका काम है. बॉडी के पोजीशन को सेंस करके एग्जीक्यूट करता है, बैलेंस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, फाइन मूवमेंट जो है उनको कोऑर्डिनेट करता है. अब इसमें थोड़ा सा आप ये देख लें, सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना मेन फंक्शन है इसका. अब एबनॉर्मलिटीज क्या है? अगर ये सेरिबेलम जो नीचे काम न करे तो क्या होगा? जो ये काम करवा रहा है उनमें डिस्टर्बेंस आएगी. कैसे? फीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड. एटोनिया और हाइपोटोनिया, मसल का टोन डिस्टर्ब हो जाएगा. क्लियर? कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा. डेविएशन मूवमेंट्स अगर लेटरल डेविएशन ऑफ आर्म व्हेन बोथ द आर्म्स आर स्ट्रेच एंड हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी विद द क्लोज आई. किसी को कहेंगे आंखें बंद करके हाथ सामने लाएं, तो उसका हाथ लेटरल डेविएट हो जाएगा. क्यों? कि बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहा सेरिबेलम. पेंडुलर नी जर्क, नी को हम जर्क करवाते हैं, टेस्ट होता है नी जर्क, वो पेंडुलम की तरह मूव करता रहेगा. क्योंकि स्टॉप नहीं होगा, सेरिबेलम का काम नहीं होगा. तो पेंडुलर नी जर्क, रिमेंबर देम फॉर योर बीसीक्यू. अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ड्रंकन गेट. जिनका सेरिबेलम डैमेज होगा वो ऐसे चलेगा जैसे ड्रिंक किया हुआ कोई चल रहा है, राइट लेफ्ट टिल्ट करेगा वो. ठीक है, ड्रंकन गेट होगा इसका. एटेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एटेक्सिया कई वजह से होता है, सेरिबेलम से भी होता है. लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा. उनको बोलेंगे कप यहाँ पे रखें जहाँ रखना होगा, या उससे नीचे रख देगा या आगे ले जाएगा, तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा. एटेक्सिया, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा मूवमेंट को. एस्थीनिया मींस, एस्थीनिया का मतलब है टाइम से पहले थक जाएगा वो, उसकी मसल में थकावट जल्दी होगी. डिसमेट्रिया, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज डिसमेट्रिया? डेजिग्नेट द लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द वॉलंटरी मूवमेंट. यानी डिसमेट्रिया का मतलब है अगर उसको कहेंगे कि आंख बंद करके नाक से अपनी जो है फिंगर टच करे, तो या तो नाक से आगे उसकी फिंगर चली जाएगी या पीछे रह जाएगी. ठीक है, ओवर शूटिंग हो जाएगी जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रिया, एंड फॉलिंग शॉर्ट या उससे पहले ही रोक लेगा मूवमेंट को जिसको कहते हैं हाइपोमेट्रिया. क्लियर? तो ये डिसमेट्रिया के अंदर आती है. लैक ऑफ एक्यूरेसी इन मूवमेंट. इंटेंशन ट्रेमर, इसको रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर एग्जाम. लफ्ज को याद रखें. सेरिबेलम के डिसऑर्डर में ट्रेमर का मतलब हाथ हिलेंगे, तब हिलेंगे जब मूवमेंट स्टार्ट होगी. व्हेन समवन इज इंटेंडेड टू मूव. रेस्ट के अंदर आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो शख्स मूवमेंट स्टार्ट करेगा तब उसको ट्रेमर होगा. इसको कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर. क्लियर?
यानी मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद ट्रेमर होगा, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट करवाना सेरिबेलम का काम नहीं है। सेरिबेलम का काम है जब मूवमेंट शुरू हो जाए उसको कोऑर्डिनेट करना, एग्जीक्यूट करना, अपने एंड तक पहुंचाना। निस्टैगमस इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट भी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, जब उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो निस्टैगमस प्रोड्यूस हो जाएगा। इस आर्थ्रिया स्पीच भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, हम जो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन से करते हैं, लेकिन डिस आर्थ्रिया कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाएगी, प्रॉपरली वो स्पीच नहीं कर पाएगा। कौन सा पेशेंट? सेरिबेलम का। An important other term, dysdiadochokinesia, most commonly asked in Viva. What is dysdiadochokinesia? It is a feature of which disease? Inability to perform alternating supination and pronation. किसी को बोलें कि हाथ सीधा उल्टा जल्दी जल्दी रखते जाएं, चेंज करते जाएं, हाथ ऊपर नीचे उसकी पोजीशन, सुपिनेशन में लाएं, प्रोनेशन में लाएं, नॉर्मल आदमी जल्दी जल्दी कर लेगा, जबकि पेशेंट ऑफ सेरिबेलम will unable to do that, that will be called as having a symptom of या sign of dysdiadochokinesia. इसके लिए adiadochokinesia word भी यूज हो। क्लियर? So what we have discussed today, basically we have discussed an important organ of motor system known as cerebellum. We discussed that cerebellum is present in the hindbrain. Anatomically, it is divided into anterior, posterior, and flocconodular lobe. Functionally, it is divided into vermus, intermediate zone, and lateral zone. Into vermus are cerebral hemisphere, which have intermediate and lateral zone. Then we have discussed that it have some afferent fiber and efferent fiber. Afferent fiber are corticopontocerebral pathway, olivocerebral pathway, vestibulocerebellar, reticulocerebellar, and we discussed the three deep nuclei: dentate, interpost, and fastigial nucleus. Then we have discussed that it have two type of fiber. One come from olive known as climbing fiber, other from other area known as mossy fiber. From Purkinje cell, the inhibitory signal comes out. Clear? So function of cerebellum was basically in maintaining three important functions: balance, equilibrium, and execution of motor activity. It was divided into vestibulocerebellum, consists of loculo-nodular lobe, which have the function of balance and eye movement. Other we discuss spinocerebellum, consists of vermis and intermediate zone. We discuss it control the axial skeletal movement. Then we discuss its lateral hemisphere, cerebrocerebellum, which have role in motor planning and coordination. Clear? This was its part. Then we discussed if cerebellum is not working, different signs, symptoms like atonia, deviation, pendular nose, knee jerk, drunken gait, ataxia, asthenia, dysmetria, intention tremor, and dysdiadochokinesia. These symptoms appear. Clear? So thank you so much for today's lecture.